Suppose that we have already discussed if object covers different distances with different speed, then how to find out the average speed. Now suppose that distribution is not with distance but distribution is with time. Person moves for time t1 with speed v1, then it moves for time t2 with speed v2, and eventually it moves time tn with speed vn, and we have been asked to find out what is the average speed of object. Then how we will find out? Distance d1 in this case will be equal to v1 into t1. As we all know that speed is equal to distance upon time, so distance will be equal to velocity into time. The distance covered in this second time segment will be equal to v2 into t2, and similarly distance covered in n time segment will be equal to vn into tn. So these are the different distances, okay, covered during time interval t1, t2 and tn. Average speed in this case will be given as total distance covered divided by total time taken to cover the same distance. So total distance covered will be what? d1 plus d2 plus d3 up to dn, and total time taken will be t1 plus t2 plus t3 up to what? tn. Distance d1 you can write it down as what? v1 into t1. Distance d2 as v2 into t2 up to distance dn as vn into tn divided by t1 plus t2 up to tn. This will be your formula for what? Average speed. This is how you will find out the average speed of that particular object. अब इसमें हम एक स्पेशल केस लेते हैं. सपोज इन स्पेशल केस टाइम दोनों सेम है. पहले t टाइम के लिए इफ ऑब्जेक्ट मूव्स विथ स्पीड v1 और फॉर नेक्स्ट t टाइम इफ ऑब्जेक्ट मूव्स विथ स्पीड v2, then what will be its average speed? Its average speed in this case will be v1t plus v2t divided by t plus t, that is 2t. T will come out common, so it will be v1 plus v2 divided by 2. This is how we can find the average speed of that particular object. So you can see how we can find out the average speed if the distribution is given according to time. Average speed of particle. Moving on now with the next concept. अब इसके बाद वाले कंसेप्ट पे हम जाएंगे. विल स्टडी मोशन अकॉर्डिंग टू पोजीशन टाइम ग्राफ. अब ये जो दूसरा टॉपिक है हमारा वो है पोजीशन टाइम ग्राफ ऑफ मोशन. देखिए जब हम पोजीशन वर्सेस टाइम का ग्राफ बनाएंगे, हियर x स्टैंड्स फॉर पोजीशन विच इज इन मीटर, t stands for time which is in second, and suppose this is a graph, this is a linear graph. इसके ऊपर की कोई भी दो पॉइंट कंसीडर करो. ये टाइम t1 पे पार्टिकल की पोजीशन है x1, एट दिस टाइम t2 पोजीशन ऑफ पार्टिकल is given as say x2. So coordinate of both the point over here t1 x1, over here t2 x2. What will be the slope of this graph? इसका स्लोप क्या होगा? Difference of y coordinate, that is x2 minus x1 divided by difference of x coordinate, that is t2 minus t1. It will be delta x by delta t, change in position per unit time, and which is nothing else but what? Which is nothing else but average velocity. So one can say that the slope of position time graph gives you what? Average velocity. हम ये बोल सकते हैं कि slope of
position time graph, that is xt graph, gives what? It gives you the value of average velocity. पोजीशन टाइम ग्राफ से हमें जो है एवरेज वेलोसिटी का पता चलेगा. अब अलग अलग फॉर्म के हो सकते हैं पोजीशन टाइम ग्राफ. जैसे कि पहला ग्राफ हम ले लेते हैं पोजीशन टाइम ग्राफ, जहां पे अगर हम ग्राफ बना रहे हैं पोजीशन x वर्सेस टाइम t का, तो ये ग्राफ कुछ ऐसे है. आप देख सकते हो ये ग्राफ में क्या हो रहा है, पार्टिकल की जो पोजीशन है x0 वो चेंज नहीं हो रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम. सो वी कैन से फ्रॉम हियर इन दिस केस पार्टिकल इज एट रेस्ट. पार्टिकल रेस्ट पे है, उसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही है. और हम ये बोल सकते हैं कि वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी हो या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ दिस पर्टिकुलर पार्टिकल इज व्हाट? 0. ओके, क्योंकि रेस्ट पे है तो उसकी वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी क्या होगी? 0 होगी. अब दूसरा पोजीशन टाइम ग्राफ हम देखते हैं. मान लो ये दूसरा पोजीशन टाइम ग्राफ है x वर्सेस t. आप यहां पे क्या देख रहे हो? अलोंग विद द टाइम पार्टिकल का x कोऑर्डिनेट जो है वो इंक्रीज हो रहा है. जैसे कि टाइम t1 पे सपोज ये x1 है, t2 पे ये जाके x2 हो रहा है. मतलब जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे उसकी पोजीशन भी क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है. तो वन कैन से दैट इन दिस केस पार्टिकल इज मूविंग along what? पॉजिटिव एक्स एक्सिस. यहां पार्टिकल कहां मूव कर रहा है? पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलॉन्ग मूव कर रहा है. क्योंकि वो पॉजिटिव एक्सिस की तरफ मूव कर रहा है, उसकी वेलोसिटी भी जो है वो क्या होगी? पॉजिटिव होगी. बिकॉज पार्टिकल इज मूविंग अलॉन्ग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, इट्स वेलोसिटी इज पॉजिटिव. एक और बात देखिए, क्या पे ग्राफ स्ट्रेट लाइन है. हम सबको पता है कि स्ट्रेट लाइन जब होगी तो उसका स्लोप चेंज नहीं होगा. इफ यू हैव अ स्ट्रेट लाइन देन फॉर दैट एंटायर स्ट्रेट लाइन slope between any two points will always be same. So if position time graph is a straight line, what does it indicate? If position time graph is a straight line, it indicates that the slope of this graph is going to remain constant. Slope मतलब क्या है? Average velocity है, मतलब velocity इसकी constant है. तो जब भी xt ग्राफ आपको लीनियर मिलेगा तो आप ये बोल सकते हो कि ऐसे ग्राफ की या ऐसे ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट है. और कांस्टेंट वेलोसिटी है इसलिए हम इसे क्या कहेंगे? यूनिफॉर्म मोशन कहेंगे. इट इज द एग्जांपल ऑफ व्हाट? इट इज द एग्जांपल ऑफ यूनिफॉर्म मोशन. वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज कांस्टेंट. एंड इफ वेलोसिटी इज कांस्टेंट, देयरफॉर वन कैन से दैट acceleration of this particular object will be what? Acceleration of this particular object will be equal to 0. Velocity constant है तो ऐसे ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन जो है वो हमें क्या मिलेगा? 0 मिलेगा. तीसरे ग्राफ की हम बात करेंगे. ये तीसरा पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ है. इट्स अ थर्ड xt ग्राफ. So it's like this way. What you can see in this graph? That as the time increases, here x coordinate of particle is decreasing. We can say that in this case particle is moving along negative x axis. As in the earlier case it was moving along positive x axis, now it is moving along negative x axis. Because it is moving along negative x-axis, one can say that velocity of object is negative. In first case, velocity of object was positive. In second case, velocity of object is negative. क्यों नेगेटिव है? क्योंकि पार्टिकल कहाँ मूव हो रहा है? नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में मूव हो रहा है. अगेन एज पर द सेकेंड केस, इवन दिस ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन.
भले वो नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में जा रहा है, लेकिन ग्राफ जो है हमारा स्ट्रेट लाइन है, उसका लीनियर नेचर है, और जब भी लीनियर नेचर होगा तो हम कहेंगे कि ये केस में भी वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट होगी और एक्सेलरेशन की वैल्यू यहाँ पे भी क्या होगी, 0 होगी. सो इवन दिस इज द एग्जांपल ऑफ व्हाट, दिस इज द एग्जांपल ऑफ यूनिफॉर्म मोशन. तो पहले 3 हमने ये ग्राफ देख लिए जहाँ पे क्या है, पहले केस में पार्टिकल रेस्ट पे है, दूसरे केस में क्या हो रहा है, दूसरे केस में पार्टिकल जो है वो यूनिफॉर्मली कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में मूव हो रहा है, तीसरे केस में क्या है, यूनिफॉर्मली कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ पार्टिकल नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में मूव हो रहा है. दोनों ही केस में, सेकंड और थर्ड केस में वेलोसिटी कांस्टेंट है, एंड बिकॉज वेलोसिटी इज कांस्टेंट एक्सेलरेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट इज 0. फोर्थ केस लेते हैं, चलिए हम कुछ इस तरीके का हमें पोजीशन टाइम ग्राफ मिल रहा है. ऑफ कोर्स यहाँ पे क्या है, ये ग्राफ जो अब लीनियर नेचर नहीं रहा उसका. जब भी ये ग्राफ का लीनियर नेचर नहीं है तो हम क्या बोल सकते हैं, इफ इट इज नॉट लीनियर, अगर लीनियर में वेलोसिटी कांस्टेंट है तो यहाँ पे वेलोसिटी इज चेंजिंग. ये चीज हमें समझ में आ रहा है कि वेलोसिटी क्या हो रही है, चेंज हो रही है. इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के बारे में अब थोड़ा डिस्कशन हमारा बाकी है, लेकिन हमने पहले बात की थी बेसिक मैथ्स में कि जब भी इसका स्लोप ढूंढना है कोई पर्टिकुलर पॉइंट पे, कर्व के पर्टिकुलर पॉइंट पे स्लोप ढूंढना है, तो वहां पे आप टेंजेंट ड्रॉ करिए. तो आप देख सकते हो कि ये 3 पोजीशन है ए, बी और सी. वहां पे ये मैंने 3 टेंजेंट्स ड्रॉ किए हैं. एज यू कैन सी दैट स्लोप ऑफ टेंजेंट्स आर इंक्रीजिंग, और स्लोप ऑफ टेंजेंट इंक्रीज हो रहा है तो हम ये बोल सकते हैं कि इन दिस केस वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम. एक और तरीके से पता चल सकता है ये ग्राफ का कर्वेचर जो किस तरफ है, ऊपर तरफ है. जब भी ग्राफ का कर्वेचर ऐसे ऊपर की तरफ होगा तो वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, और अगर वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है तो एक्सेलरेशन ये केस में क्या होगा, पॉजिटिव होगा. फिफ्थ केस में हम ये ले रहे हैं कि ग्राफ का कर्वेचर नीचे की तरफ है. आप दोनों में फर्क पता कर सकते हो. यहाँ पे कर्वेचर वाज इन अपवर्ड डायरेक्शन, यहाँ पे कर्वेचर इज इन डाउनवर्ड डायरेक्शन. हियर वी कैन से कर्व इज देयर ओपनिंग कर्व और इट इज अ क्लोजिंग कर्व. यहाँ पे अगर आप 3 पॉइंट्स ले रहे हो पहले की तरह ए, बी और सी, और तीनों पॉइंट्स पे अगर टेंजेंट आप ड्रॉ कर रहे हो तो व्हाट यू कैन सी, एज यू आर मूविंग अहेड टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट इज डिक्रीजिंग. ऑफ कोर्स इन दिस केस आल्सो वेलोसिटी इज चेंजिंग, बट इन दिस केस velocity is decreasing and therefore acceleration in this case will be negative. So these are the 5 xt graph that we have gone through. The first xt graph indicates that particle is at rest and velocity of particle is 0, so its position is not changing with respect to time. In second xt graph we have discussed that particle is moving along positive x-axis, velocity is positive, and because it is straight line nature velocity is constant, and if there is constant velocity, no change in velocity, so acceleration will be 0. In this third case also it is a straight line graph, so velocity is constant but it is moving along negative x direction, so velocity is negative. These are the 2 examples of non-uniform motion where velocity is changing. We can only predict the nature of acceleration or sign of acceleration, whether it is positive or negative. This is the limitation of position time graph. With position time graph you can find out the value of velocity, you can find out whether acceleration is positive or negative, but you certainly cannot find out the exact value of acceleration using the position time graph. For that you will have to take help of velocity of time graph. Okay, so you are getting this. With position time graph, what things we can conclude? Whether object is moving along positive or negative direction, whether it is uniform motion or non-uniform motion. If it is non-uniform motion, it is positively accelerated motion or negatively accelerated motion. All this stuff can be concluded easily using position time graph.
देखिए अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस पे ध्यान देना। ये है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। नाम से ही पता चल रहा है कि हमें यहाँ पे क्या करना है, वेलोसिटी ढूंढनी है। बट यू हैव टू फाइंड आउट वेलोसिटी एट पर्टिकुलर इंस्टेंस, एट पर्टिकुलर मोमेंट। क्या फर्क है दोनों चीज में? अगर मैं बोलूं यहां से कि सपोज दैट यू आर सिटिंग इन अ बस, आपने एक पालनपुर से बस में बैठे हो आप, एंड यू आर गोइंग से टू अहमदाबाद। सपोज दिस इज अ पालनपुर एंड यू आर रीचिंग से अहमदाबाद, और पालनपुर से अहमदाबाद का अप्रोक्सीमेट डिस्टेंस में ले लेता हूँ, क्या है 150 किलोमीटर है। सपोज यू आर गोइंग फ्रॉम पालनपुर टू अहमदाबाद, अप्रोक्सीमेट डिस्टेंस इज 150 किलोमीटर। यू आर कंप्लीटिंग योर जर्नी से इन 3 आवर। पालनपुर से अहमदाबाद का 150 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है आपने 3 आवर में कंप्लीट किया। तो अगर मैं पूछूं कि भाई आपकी यहाँ पे एवरेज स्पीड या एवरेज वेलोसिटी क्या है, तो आप बोलोगे 150 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय 3 आवर टोटल टाइम, मतलब कि आपकी जो स्पीड थी वो हो गई 50 किलोमीटर पर आवर। हालांकि समझ में एवरेज स्पीड के बारे में हम क्या बोल रहे हैं, हमेशा हमने एवरेज स्पीड के बारे में यही बोला है, एवरेज स्पीड इज नथिंग एल्स बट टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम। सो इफ you are covering a distance of 150 kilometer in 3 hour time interval, your average speed will be 150 by 3, that will be 50 kilometer per hour. But my question to you is that, is it necessary that right from the beginning of journey, right from the point that you have left Palanpur till the point or till the time you have reached Ahmedabad, is it necessary that the speedometer always showed 50 km per hour, or the bus was moving at a constant velocity of 50 km per hour? Of course not. We know that whenever there is a traffic, the speed may decrease. जब भी ट्रैफिक आएगी, जब भी स्पीड ब्रेकर आएगा, जब भी बस स्टॉप आएगा तो स्पीड कम होगी। इवन बस स्टॉप पे बस रुक जाएगी तो वो मोमेंट पे स्पीड 0 भी हो जाएगी। और जब भी ट्रैफिक क्लियर होगा, रास्ता खुला होगा, तब वो बस की स्पीड ज्यादा भी होगी। तो 50 किलोमीटर पर आवर तो एवरेज स्पीड मिली है। इसका मतलब ये नहीं है, ये जरूरी नहीं है कि पालनपुर से अहमदाबाद की टोटल जर्नी में उसकी स्पीड कांस्टेंट 50 किलोमीटर पर आवर ही थी। हम ये कहेंगे उसकी स्पीड चेंज हो रही थी, इट्स स्पीड वाज चेंजिंग। एंड सपोज इफ आई ड्रॉ दिस पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ, इट मे बी सम दिस काइंड ऑफ नेचर। Sometimes speed was 0, sometimes speed was increasing, sometimes speed was decreasing, कोई भी नेचर हो सकता है। ये मैंने रैंडम नेचर यहाँ पे बनाया है। तो अगर मुझे कोई मोमेंट पे मैं बोलूँ कि एग्जैक्ट मुझे ये बताओ कि जब आपने बस में बैठे हो उसके 1 आवर के टाइम इंटरवल के बाद उसकी स्पीड क्या थी, तो आप कैसे ढूंढोगे? आई वॉन्ट द स्पीड एग्जैक्टली एट द टाइम ऑफ 1 आवर, व्हाट विल बी इट्स स्पीड। तो मैंने जैसे आपको ग्राफिकल मेथड से तो बताया कि आपको क्या करना पड़ेगा, एक टेंजेंट ड्रॉ करना पड़ेगा, और एक टेंजेंट ड्रॉ करके टेंजेंट का आप स्लोप ढूंढोगे। तो स्लोप ऑफ जो टेंजेंट होगा वो आपको क्या देगा, इंस्टेंटेनियस स्पीड देगा। स्लोप ऑफ टेंजेंट का मतलब क्या है, टेंजेंट हमेशा एक ही पॉइंट में से पास होता है। अगर टेंजेंट एक ही पॉइंट में से पास हो रहा है तो हम ये बोल सकते हैं कि ये जो टाइम इंटरवल है, टाइम इंटरवल डेल्टा टी, ये बहुत ही छोटा ले रहे हो आप। जब भी आप इंस्टेंटेनियस स्पीड ढूंढनी है तब टेंजेंट का स्लोप ढूंढना है। स्लोप की वैल्यू तो क्या होती है, स्लोप की वैल्यू होती है डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी, और वही आपको क्या देता है, वही आपको देता है एवरेज स्पीड। लेकिन जब आप इंस्टेंटेनियस स्पीड ढूंढ रहे हो तो इंस्टेंटेनियस स्पीड का मतलब क्या हुआ, इंस्टेंटेनियस स्पीड का मतलब हुआ आपको यही लेना है, डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी ही लेना है, उसी से आपको इंस्टेंटेनियस स्पीड भी मिलेगी। लेकिन ये जो टाइम इंटरवल है, टाइम इंटरवल आपको बहुत ही छोटा लेना है। कितना छोटा लेना है, जितना आप छोटा ले सकोगे
उतनी आपको ज्यादा प्रॉपर इंस्टेंटेनियस स्पीड मिलेगी। तो हम ऑलमोस्ट इसको जीरो के काफी करीब लेंगे, तो हम ये डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी का लिमिट लेंगे विथ टाइम डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो। ये जो एरो मैंने यहाँ पे बनाया है, व्हाट डज इट मीन, इसे कैसे रीड करोगे आप? डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, टाइम इंटरवल टेंड्स टू जीरो। टेंड्स टू जीरो का मतलब है ये जीरो के काफी करीब है, इट इज वेरी क्लोज टू जीरो बट इज नॉट इक्वल टू जीरो। लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी, और उससे मुझे क्या मिलेगा? आई विल गेट डी एक्स बाई डी टी एंड दैट इज एवरेज स्पीड। नाउ व्हाट इज डी एक्स बाई डी टी? डेल्टा एक्स मतलब चेंज इन पोजिशन, डी एक्स a small change in position, delta t means time interval, dt means a very small time interval. So change in position with respect to time ही है ये dx by dt, मतलब ये स्पीड ही है, लेकिन इसे ये भी कहा जा सकता है, you can in mathematical language you can say that it is differentiation of x with respect to t। इसे हम क्या रीड कर सकते हैं? डिफरेंशिएशन और डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन x विथ रिस्पेक्ट टू टाइम t, इट इज नोन एज व्हाट? इट इज नोन एज इंस्टेंटेनियस स्पीड। यू आर गेटिंग दिस? कोई डाउट है यहाँ पे? इस तरीके से जो है हम इंस्टेंटेनियस स्पीड इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। इट इज dx बाई dt। अब डेरिवेटिव के कुछ रूल है, पहले हम उसके ऊपर आते हैं। आपको मैंने ये तो बता दिया कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी v को आप क्या लिख लो? dx बाई dt, लेकिन डेरिवेटिव के क्या रूल है वो भी हम देख लेते हैं। रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन। आई होप मैंने कुछ सेगमेंट इसका बेसिक मैथ्स में क्लियर करवाया होगा, नहीं भी करवाया तो यहाँ पे देख लीजिए डिफरेंशिएशन हम कैसे करते हैं। अगर मेरे पास कोई फंक्शन है x रेस टू n, इफ आई हैव अ फंक्शन x रेस टू n नहीं लेता, चलो मैं t रेस टू n ही लेता हूँ, क्योंकि हमें हमेशा डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम ही करना है। तो फॉर्मूला ये है कि d बाई डी टी ऑफ दिस फंक्शन t रेस टू n विल बी व्हाट? d बाई डी टी ऑफ t रेस टू n, इसकी वैल्यू क्या आएगी? ये पावर n आगे आएगा, पावर n आगे आएगा, t रेस टू n माइनस वन। आ रहा है समझ में? डिफरेंशिएशन d बाई डी टी ऑफ t रेस टू n, पावर n विल कम अहेड एंड t रेस टू n माइनस वन। इसके कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। d बाई डी टी ऑफ t क्यूब, तो आंसर क्या आएगा? पावर आगे आएगा 3 और एक पावर कम होगा, इट विल बी 3t स्क्वायर। सिमिलरली d बाई डी टी ऑफ t रेस टू माइनस टू अगर होता तो भी क्या होता? पावर आ गया था -2, t रेस टू -2 माइनस वन, मतलब t रेस टू -3, ये आंसर होता। d बाई डी टी ऑफ t रेस टू 1/2 अगर होता तो क्या लिखते आप? 1/2 t रेस टू 1/2 माइनस वन, दैट विल बी -1/2। यू आर गेटिंग दिस? इन ऑल द केसेस t रेस टू n अगर है तो रूल क्या है? द पावर विल come as a multiple and power will get reduced by 1. So d by dt of t cube will be 3t square. d by dt of t raised to -2 will be -2t raised to -3. d by dt of t raised to 1/2 will be 1/2 t raised to -1/2. अगर मैं ये कहूं कि ऑलरेडी कोई नंबर मल्टीप्लाइड है यहां पे, d बाई डी टी ऑफ k इंटू टी रेस टू n, तो इसका क्या आएगा आंसर? तो सिंपल है यहां पे k एज इट इज, क्योंकि कांस्टेंट है बाहर आएगा, और टी रेस टू n का जो रूल है वही फॉलो करो, n इंटू टी रेस टू वॉट? n माइनस वन। आ रही बात समझ में? तो यहां पे हम ये कह सकते हैं d बाई डी टी ऑफ अगर 4t स्क्वायर होता तो आंसर क्या आता है इसका? 4 एज इट इज बाहर आता, मल्टीप्लाइड बाय टी स्क्वायर का
2t⁻1, 2t⁻1 मतलब ये आंसर आपका क्या होता? ये आंसर होता 8t। दिस आर रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन दैट वी आर गोइंग थ्रू। अगर होता d/dt ऑफ 7t⁻5, अब डायरेक्ट आंसर चाहिए मुझे, सीधा पावर को 7 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, 7 5 जा 35 और पावर एक रिड्यूस कर दो t⁻4, so it will be 35t⁻4. That is how you will get your answer. Third case, अगर d/dt ऑफ अकेला t है, मतलब उसका पावर 1 है, अकेला t मतलब, तो उसका आंसर क्या होगा? इट्स आंसर विल बी 1, बिकॉज 1 into t⁻1 minus 1, it will be 0, t⁻0 is 1, so answer itself is 1. If you are having d/dt of some constant term k into t, so in that case your answer will be k only, because differentiation of t is only 1, so your answer comes out to be k only. If you are having only constant term, जहाँ पे कोई t है ही नहीं, तो कांस्टेंट टर्म में तो कोई वेरिएशन होगा नहीं, सो इस डिफरेंशिएशन विल बी व्हाट? d/dk ऑफ k विल बी इक्वल टू व्हाट? 0. d/dt ऑफ k विल बी इक्वल टू 0. सो दीज आर ऑल रूल दैट वी आर राइटिंग डाउन फॉर डिफरेंशिएशन. अब एल्जेब्रिक फंक्शन के कुछ और रूल भी है. d/dt ऑफ दो फंक्शन है, f ऑफ t और g ऑफ t, दोनों का एडिशन है. चलो, तो आप कैसे सॉल्व करोगे? d/dt ऑफ f ऑफ t प्लस g ऑफ t, सो इट विल बी d/dt ऑफ f ऑफ t प्लस और माइनस d/dt ऑफ g ऑफ t. आप सिंपली ये ब्रैकेट को ओपन कर सकते हो, ये आपका रूल है. ये हम कह सकते हैं कि दो फंक्शन को एडिशन रूल है. दिस इज द एडिशन रूल फॉर टू फंक्शंस. इसका भी कोई एग्जांपल ले लेते हैं हम. इसका एग्जांपल ये आएगा d/dt ऑफ 3t² 3t³ चलो प्लस 4t² प्लस 5t प्लस 3. अगर ऐसा फंक्शन होता, मेरा पॉलिनोमियल होता, तो मैं क्या सॉल्यूशन इसका लिख सकता था? इसका आता है d/dt ऑफ 3t³ ओपन कर दो, d/dt ऑफ क्या आता? 4t² d/dt ऑफ 5t प्लस d/dt ऑफ 3. सो आंसर विल बी 3 3 जा 90², 4 2 जा 80, 5t मतलब ये कौन सा फॉर्म है? k इंटू टी वाला फॉर्म है, तो ओनली 5 और लास्ट में कोई कांस्टेंट टर्म है, तो उसका आंसर होगा 0. सो आंसर वुड बी 90² plus 80 plus 5. This will be your final answer. You are getting this? So these are the various rules for differentiation that we are using.